वस्तुतः वाक्यद्वयं संस्कृतभाषायां वदामि. In this starting day, inaugural day, I will tell few words in Sanskrit. अद्य ध्यान विषये, मेडिटेशन विषये एव भाषणं भविष्यति. Today we will hear a lecture on meditation. Meditation related to mind. संस्कृते एवमस्ति, मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः. Mind is the reason either for bandha or moksha. Moksha means salvation. Unity with the Supreme God, Supreme Soul. That is moksha. Tatra, for that unity, mokshasya कृते किं व्याघात अथवा किं प्रतिबन्धरूपेण किं तिष्ठति, किमस्ति? वस्तुतः वदति ऐक्यम् आवश्यकं चेत् तत्र प्रतिबन्धरूपेण किमस्ति इति ज्ञातव्यम्. वस्तुतः अस्माकं मन एव तत्र प्रतिबन्धं जनयति. Actually, our mind is creating problems. So we have to treat our mind. Tatra chikitsa karaniya. Tatra katham chikitsa bhavati? अस्माकं शरीरे रोगबाधः भवति तदानीं औषधं स्वीकर्तुं शक्यते. भिषग्वरस्य पार्श्वे गत्वा, when we got some disease, we can approach a doctor. Doctor will see what is the problem related to him, his body, mainly body. Doctor is more concerned about body, not mind. So then he will prescribe some medicine. So for mind, what is the real medicine to treat mind? That is meditation. Today, we are happy our most respected madams are here from Brahma Kumari Samaj. So ours is a Sanskrit education institution. Our students are supposed to be free from all these bondages. But how far it is in practical, that we have to see. See, we are human beings. Naturally, we have to struggle with the surroundings, the space where we are living. So, what is the way out to overcome these issues, these problems, to have a better, good life, ultimately to get peace in our life? In that area, today, the speech we will hear on behalf of this Sanskrit Mahavidyalaya, I welcome most respected madams, Brahma Kumaris of West Bengal branch. I think so. Continuously, our prayers are like this. Kindly visit our institution in frequent intervals and have a dialogue
and give proper directions to our students, our staff members to have a better life and to have a good relationship with the society. Everywhere we can see the problems. What is the real cause of this problem? We don't have real understanding. We are the part of this supreme soul, but because of ego is creating the problem. वस्तुतः अद्य भाषणे अस्माभिः श्रोतुं शक्यते, अवगन्तुं शक्यते किं कारणं दुःखस्य अस्माभिः यद्यद् अनुभूयते तस्य कष्टस्य मूलकारणं किमस्ति तत्तु अस्माकम् अहम्बोधः. Ego is the real problem for all these issues which we are facing. Not we mean the universe is facing. There, the contributions of Brahma Kumaris cannot be appreciated with words. Anyway, on behalf of this institution, I invite you for giving this lecture and also my invitation for frequent visit to this institution. Thank you. Dhanyavad. शांति. ओम शांति. ओम शांति. सभी मेरे साथ बोलेंगे एक बार ओम शांति, क्योंकि शांति ही तो हमें चाहिए ना जीवन में. एंड वी ऑल्सो अप्रिशिएट आज का आपका ये जो प्रयास है, बहुत सुंदर प्रयास है सभी के लिए, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है सभी एक साथ, एक फैमिली, एक परिवार होता है. तो जो भी परिवार के बड़े होते हैं वो परिवार के और बाकी लोगों के लिए शुभ चिंताएं करते हैं, शुभ आशाएं करते हैं. तो ये आपका भी बहुत सुंदर प्रयास है. आज इसके लिए जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, हम भी आभारी है, यहाँ पे आके खुश भी है. तो हम जब भी कभी किसी से मिलते हैं तो हम ओम शांति कहते हैं, क्योंकि शांति हम सबको आज जीवन में बहुत आवश्यक है. तो अभी सभी यहाँ पर मौजूद हैं, आ गए हैं ना सभी? ठीक है. तो हम एक एक्टिविटी करते हैं. तो एक्टिविटी क्या होगा, मैं बोलूंगी गॉड सेज हैंड्स अप, तो आपको हाथ ऊपर करना है. गॉड सेज हैंड्स डाउन, आपको हाथ नीचे करना है. अगर और कोई आपको बोले तो आपको हाथ ऊपर नीचे नहीं करना है, सिर्फ गॉड सेज तभी आपको हाथ ऊपर नीचे करना है. तो वी आर रेडी. स्टार्ट. गॉड सेज हैंड्स अप. गॉड सेज हैंड्स अप. गॉड सेज हैंड्स डाउन. गॉड सेज हैंड्स अप. हैंड्स डाउन. मैं अभी फिर से आपसे पूछती हूँ, सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं. मेरा क्वेश्चन का पहले ये मतलब था कि फिजिकल प्रेजेंस नहीं, मेंटल प्रेजेंस. आपको रूल्स पता था, गॉड अगर ना बोले तो आपको हैंड्स डाउन नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कर दिए. इसका कारण क्या है? हम फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अभी भी स्कैटर्ड है. तो हम अभी जो ये शब्द कर रहे हैं, करने जा रहे हैं सनों तक, तो इसके लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं. क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं आप? टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम इज मनी. तो जब भी हम कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका 100% बेनिफिट अगर हमें मिले, वही हम चाहते हैं. तो ये जो सेशन है, इस सेशन का 100% बेनिफिट अगर हम लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली ये सेशन में प्रेजेंट रहना पड़ेगा. तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे फिजिकली एंड मेंटली प्रेजेंट रहने के लिए.
कि मन कहीं हमारा दूसरी तरफ भाग ना जाए, क्योंकि मन तो बच्चा है और हम कहते हैं वो भाग दौड़ करता ही रहता है। तो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूट के बारे में कितने लोगों को यहाँ पे पता है? बहुत बेसिक आइडिया है। बहुत बेसिक आइडिया है। तो फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में संस्था का परिचय देना पसंद करूंगी। हमारा संस्था का पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 1937 सिंध हैदराबाद में इसका फाउंडेशन हुआ था। तब इस संस्था का नाम था ओम मंडली। बाद में 1950 के बाद ये संस्था इंडिया में आई और आज लगभग पूरे विश्व में 140 देशों में 9 लाख के करीब हमारे ब्रांचेस है। इस संस्था का नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। 2 वर्ड है इसमें, एक है स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, धर्म नहीं, लेकिन आध्यात्मिकता। धर्म और आध्यात्मिकता अलग होती है, क्योंकि हम जानते हैं कहीं ना कहीं धर्म दायरा क्रिएट करता है, एक बाउंड्री। आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ नहीं जाना है, आप इनसे अलग है। और आध्यात्मिकता क्या कहती है? वसुधैव कुटुंबकम। पूरा वर्ल्ड एक परिवार है और उस परिवार के एक ही पिता है, उस पिता का हम सब संतान हैं। इसलिए तो ये संस्था भगवान के नाम पे सभी को एकत्रित करते हैं। दूसरी विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। कोई भी यूनिवर्सिटी में क्या किया जाता है? एक तो शिक्षा दी जाती है और शिक्षा के साथ साथ क्या किया जाता है? कैरेक्टर बिल्डअप। कि जब भी कोई स्कूल या कॉलेज से ट्रांसफर होते हैं या फिर कभी स्कूल कंप्लीट करके जाते हैं तो सबको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आज देखने लायक बात ये है कि हम जैसा चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बने, उनका जो स्वभाव संस्कार होना चाहिए। हर माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे अपने जैसे बने, लेकिन क्या हमारी कैरेक्टर वैसी है जो हम प्यार से बच्चों को कह सके बच्चे तुम हूबहू मुझे फॉलो करो, मुझ जैसा बनो? आज के दिन मैं नहीं कह सकती अपने बच्चे को। हम चाहेंगे, हम बोलेंगे कि तुम मुझसे अच्छा बनो, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं पता है जैसा होना चाहिए वैसे हम नहीं हैं। तो ये कैरेक्टर बिल्डअप कौन करता है? स्वयं भगवान आके हमारी कैरेक्टर बिल्डअप करते हैं, क्योंकि आज चारित्रिक अधोगति ही हमको दिखाई दे रही है। क्योंकि कोई भी पेपर में, कोई भी न्यूज चैनल में अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? हादसा पे हादसा, है ना? तो इसलिए भगवान आके हमारी चरित्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं। तो ये संस्था से, तो हमारा इस संस्था का मोटो ये है कि हमें कैसा बनना है। नर ऐसी करनी करे जो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। तो हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हम लक्ष्मी नारायण जैसे दिव्य गुण संपन्न बने। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमारी संस्था कहती है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। हम क्या करते हैं? चाहते हैं लोग बदल जाए, हम बदलाव चाहते हैं दुनिया में, जीवन में, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। और ये संस्था वॉलेंटियर सर्विस पे विश्वास करती है। वॉलेंटियर सर्विस पे ही चलती है, कोई डोनेशन हम नहीं लेते हैं। ये संस्था चलती है एक परिवार जिस तरह से चलता है, हर कोई कंट्रीब्यूट करता है, उस हिसाब से परिवार जैसा ये कार्य करता है। तो ये है हमारी संस्था। तो 21 विंग के जरिए हमारे यहाँ पे बहुत कार्यक्रम होते हैं।
विंग के मतलब ये है कि हर एक सेगमेंट, जो पूरे समाज में जितने भी सेगमेंट्स है, सभी सेगमेंट में हम ये स्पिरिचुअलिटी को इनकॉर्पोरेट कर सके। तो इसीलिए जुरिस्डिक्शन विंग है, वुमेन विंग है, एजुकेशन विंग है, हमारे आईटी विंग है, कल्चरल विंग है। तो ऐसे बहुत सारे विंग्स के जरिए हम सेवाएं देते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, जैसे आज हम आपके पास आए हैं। तो फिर हम वापस आते हैं आज की मेन जो डिस्कशन का पॉइंट है हमारा, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगी, आप स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते हैं या स्ट्रेस फ्री बनना चाहते हैं? जरूर, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट, इसका मतलब हमारे पास स्ट्रेस रह रहा है परमानेंटली, उसको हम मैनेज करना चाहते हैं। और स्ट्रेस फ्री का मतलब स्ट्रेस को जिंदगी भर के लिए विदा दे देना। तो हम स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहते हैं, लेकिन क्या वास्तविक में ये संभव है? रियली ये पॉसिबल है? अब जब हम खुद ही मान रहे हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल बोल रहे हैं ना। इम्पॉसिबल वर्ड को अगर हम काट देते हैं, आई एम पॉसिबल। अच्छा, एक बहुत सुंदर बात बताया जाता है कि जैसे हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। ये बात तो हम जानते हैं। तो उसका एग्जाम्पल का क्या है? देखिए, स्ट्रेस क्या है? एक्चुअल में स्ट्रेस क्या है? एक सिचुएशन है, एक पर्सन है। क्योंकि पर्सन या सिचुएशन जो भी हमारे सामने आते हैं, हम कहते हैं ये घटना के लिए मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, ये पर्सन के लिए मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ। घटना और पर्सन को अगर हम हटा देते हैं, यानी सिचुएशन बाहर से हमारे पास आया है, उसको हम अपने अंदर प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, रिएक्ट कैसे कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए एक ही सिचुएशन, एक बहुत सुंदर कहानी याद आ रही है अभी, कि एक पेड़ के नीचे कुछ व्यक्ति ने ये तूफान के समय शेल्टर लिया कुछ समय के लिए। तो जब बहुत जोर की तूफान चल रही है, तो पेड़ों की जो डंठल है, डंडियां हैं, उसमें बहुत आवाज आ रही है। तो उससे जो आवाज हो रही है, तो नीचे बैठी एक सन्यासी थे, तो वो अभी अभी सन्यास लिए थे। तो वो मन में बोल रहे हैं कि हे वृक्ष, मैं संसार से बाहर आया कलह कलेश से दूर रहने के लिए। इतनी आवाज थी संसार में, एक दूसरे के साथ सभी का जो होता रहता है, तो वो आवाज से बचने के लिए मैंने संन्यास लिया। लेकिन यहाँ पे आके भी वही आवाज हो रहा है, वही एक दो के साथ टकराव हो रही है। तो क्या इसी के लिए मैंने संन्यास लिया? तो इनका ये ख्यालात था। दूसरे वहां पे एक बिजनेसमैन बैठे हुए थे। तो थोड़ा तूफान और ज्यादा बढ़ा, तो उनके जो पत्ते थे, वो पत्ते भी उड़ गए और उड़ के धूल में, मिट्टी में गिर पड़े। तो जो बिजनेसमैन थे, वो सोच रहे हैं कि जिंदगी भर मैंने जो भी धन दौलत नाम शान जो भी मैंने कमाया है, क्या अंत समय में वो भी ऐसे ही धूल मिट्टी में मिल जाएगा? तो जीवन भर इतनी कमाई का क्या मतलब रहा? ये उनका सोच। तीसरा व्यक्ति, वो संगीतकार था। वो मन में बोला कि हे वृक्ष, मैं इतने सालों से संगीत चर्चाएं करता हूँ, इतना इंस्ट्रूमेंट मैं बजाता हूँ, लेकिन आप जो संगीत बना रहे हैं, उतना सुंदर संगीत तो मैं भी नहीं बना सकता। सिचुएशन तीनों के पास सेम था। तो क्या सिचुएशन उन तीनों को स्ट्रेस टेंशन दिया? उस सिचुएशन को अपने अंदर में कैसे प्रोसेस करना है, किस तरह से उसको प्रोसेस करना है, उसके ऊपर रिजल्ट अलग अलग निकला।
तो इसका मतलब स्ट्रेस टेंशन देने वाला सिचुएशन या व्यक्ति होता है या मैं खुद होती हूँ? क्योंकि क्रिएटर कौन है? मैन इज द मास्टर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। तो अपना डेस्टिनी मैं खुद क्रिएट करती हूँ, खुद हर सिचुएशन को मैं प्रोसेस करती हूँ। तो हमारा एक आउटर वर्ल्ड होता है, हमारा एक इनर वर्ल्ड होता है। तो आज हमारे पास इतने साधन हैं, कितना सुंदर दूर बैठे जो भी है वो भी आज पार्टिसिपेट यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो साधन हमारे पास कितने हैं, कितने दूर बैठे भी हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन दुख की बात क्या है, हम खुद से कितना दूर जा रहे हैं। एक ही घर में बैठे, दोनों रूम पे दो व्यक्ति बैठे हैं, दोनों के साथ कोई बातचीत नहीं है, लेकिन हम दूसरे देश में किसी के साथ बात कर रहे हैं। अपने परिवार वालों के साथ, अपने नजदीक वालों के साथ से हम कितना दूर जा रहे हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे करीब होते हैं उनके ऊपर हमारा अधिकार होता है। अब जब हम कहते हैं अधिकार होता है, इसका मतलब हम चाहते हैं कि दिस इज माय पोजीशन, प्रॉपर्टी। तो इंसान को इंसानियत के नजर से अपने खुद के जो परिवार वाले हैं, जो नजदीक वाले हैं, उनको ही हम इंसान के नजर से नहीं देखते, पोजीशन समझते हैं, अधिकार जताते हैं। तो स्ट्रेस टेंशन किस हिसाब से तैयार होता है, किस कारण तैयार होता है? हम दूसरों से जो चाहते हैं, क्या खुद वैसे बर्ताव दूसरों के साथ करते हैं? हम दिन में जब घर से बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि आज क्या पहन के जाए, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेबल दिखना है। वो मैंडेटरी होता है प्रेजेंटेबल दिखना। लेकिन हम जब किसी के साथ बात करते हैं, किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो भी तो खुद का प्रेजेंटेशन ही करना है, लेकिन वो हमारे ये बाहरी रूप का प्रेजेंटेशन नहीं, हमारे अंदरूनी प्रेजेंटेशन है। तो घर से निकलने से पहले कभी ये सोच के निकलते हैं कि आज क्या सोच लेके मुझे जाना है? दिन में कितनी बार घर को क्लीन करते हैं? दिन में कितनी बार अपने शरीर को क्लीन करते हैं? क्लीन करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाइजीन के लिए। मन को क्लीन करते हैं। कभी क्लीन करने की आवश्यकता महसूस की? कैसे क्लीन करना है जानते हैं? अगर कोई डायरेक्ट हमको बोल दे कि अपने मन को क्लीन करो, तो हम भड़क जाते हैं। क्या बोलना चाहते हो तुम? मेरा मन खराब है, मैं गलत हूँ, हम भड़क जाते हैं। लेकिन मन को क्लीन अगर नहीं करते हैं तो मन की हाइजीन खराब होती है। तो उससे क्या होता है? अनहाइजीनिक फूड अगर आप खा लेते हैं तो आपका हेल्थ बिगड़ता है। अभी कुछ देर पहले सर बोल रहे थे ना कि शरीर जब बिगड़ता है तो डॉक्टर के पास जाके हम पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कई सारे इक्विपमेंट है, मशीनरीज है। बीपी आप चेक कर सकते हैं, ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं, लेकिन मन कितना बीमार है उसे चेक करने के लिए कुछ है हमारे पास? लेकिन मन तो बताता है कि मैं बीमार हूँ। बीमार अगर नहीं भी हूँ, कमजोर हूँ, ये तो दिखाता है। कैसे? छोटी छोटी बात पे इरिटेट हो जाना। हम बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं। ये तो कोई एक व्यक्ति नहीं, आज पूरे समाज में हर कोई का पेशेंस बहुत कम है। हर चीज में हमें जल्दी जल्दी चाहिए।
इंस्टेंट चाहिए, क्योंकि अभी इंस्टेंट शब्द हर किसी के साथ जुड़ चुका है। खाना इंस्टेंट तैयार होना चाहिए, डिलीवरी फूड का इंस्टेंट होना चाहिए, सब कुछ इमीडिएट होना चाहिए। तो इसीलिए जो भी हो रहा है हमारे मन में, वो मन संकेत देता है छोटी छोटी बातों से। मन बिना कारण खराब हो जाना, बिना कारण एग्जॉस्टेड हो जाना, बिना कारण लगना कि कभी कहीं पे घूम के आए, कहीं थोड़ी देर मस्ती करके आए, पार्टी में जाए, कहीं पे एंटरटेनमेंट चाहिए, सीरियल देखे, सिनेमास देखे, व्हाट्सएप, फेसबुक, कुछ भी करे, लेकिन खुद को एंटरटेन करना है। क्यों करना है? अंदर में एक भूख है, जो भूख मिट नहीं रही है, एक खालीपन है अंदर, जो खालीपन मिट नहीं रही है। इसीलिए इतने परिवार के लोग, इतने दोस्त, इतना सोसाइटी बड़ा होने के बावजूद एंड ऑफ द डे रात को हम कहते हैं कि मैं बहुत अकेली हूँ, मैं बहुत अकेला हूँ। आज हम लोग वर्चुअल रियलिटी एक चीज है ना, यूट्यूब में वीआर आंखों में ग्लासेस लगा के हम देख सकते हैं, वर्चुअल रियलिटी कहा जाता है जिसको। हम जी ही रहे हैं वर्चुअल रियलिटी में। कैसे? हम आज स्टेटस अपडेट देते हैं व्हाट्सएप में, बहुत खुश है। कुछ ही दिन बाद राखी आने वाली है, राखी में हम स्टेटस अपडेट देंगे कि बेस्ट राखी ऑफ द लाइफ, ऐसे करके हम स्टेटस अपडेट देते हैं। लेकिन पीछे हम ये देखते हैं कि राखी बांधने से पहले भाई बहन का बहुत झगड़ा हो गया, छोटी सी बातों को लेकर। जो गिफ्ट उसे पसंद था वो गिफ्ट उसे नहीं मिला, उसके बाद भी राखी में दे रहे हैं बेस्ट राखी। प्रिटेंड करना, जो वास्तविक नहीं है, जो रियलिटी नहीं है, उसे प्रिटेंड कर रहे हैं हम, लोगों को दिखा रहे हैं मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा लाइफ तो एकदम सेट है, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि मैं लोगों को दिखा रही हूँ। तो लाइफ टाइम हमने जो कुछ भी किया ना आज तक, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए किया। पढ़ाई अच्छा पढ़ना है, अच्छा रिजल्ट करना है, माँ बाप को इम्प्रेस करने के लिए, दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए, अच्छी जॉब लेनी है किसी और को इम्प्रेस करने के लिए, प्रमोशन चाहिए मेरे कॉलीग को इम्प्रेस करने के लिए, घर वालों को इम्प्रेस करने के लिए। तो हर चीज में मैंने दूसरों को इम्प्रेस किया, तो कभी तो खुद को इम्प्रेस करने के लिए कोई काम ही नहीं किया। तो मुझे दांत दर्द हुआ है और मैंने कहा कि थोड़ी देर टीवी देख लेते हैं, मन थोड़ा दर्द से हट जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसी प्रकार मन में इतने तनाव है, मन में इतने खालीपन है, मन में इतना घाव है जिसका कोई ट्रीटमेंट आज तक नहीं किया, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया खुद को। क्या किया? थोड़ा सा मन बहलाया, तो इलाज तो नहीं किया ना। तो अगर हमारे हाथ में कट जाए तो हम अगर खुला छोड़ देते हैं, उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो वो क्या हो जाता है? घाव और गहरा हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक मन में भी अगर कोई गहरा घाव हम छोड़ के रखे हैं, उसका इलाज नहीं किया, तो मन में भी उसका प्रभाव पड़ता है। कभी कभी क्या होता है, हमारी हाथ अगर बहुत ज्यादा काम करने लगता है तो हाथ सुन्न हो जाता है, যেটাকে আমরা অবশ বলি, হাত অবশ হয়ে গেছে। তো ঠিক মনের ভেতরেও অনেক কিছু ধরে রেখে রেখে मन में बहुत बातें हम लोग पकड़ के रखते हैं, रखते रखते एक समय ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अब कुछ भी मुझे इफेक्ट नहीं करता है, अब मैं एकदम नम हो गई हूँ, मुझे खुशी भी नहीं होती है, मुझे दुख भी नहीं होता है। इसका मतलब इसीलिए हर व्यक्ति के अंदर से सिंपैथी दूसरों के प्रति, एम्पैथी दूसरों के प्रति अब जा चुका है। इसीलिए कोई किसी का नहीं समझता है, क्यों? अंदर से खुद नम हो गए हैं।
इसीलिए कहा जाता है जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बन जाएंगे। हम आज छोटा सा बच्चा जब गिर जाता है तो उसे पकड़ के रोने लगता है बच्चा, तो हम क्या करते हैं, मिट्टी को मारते हैं और कहते हैं ना डांट दिया उसको। आपको चोट लगाया ना, आपको चोट पहुंचाया, उसको डांट दिया। उस बच्चे को हमने क्या सिखाया कि तुम्हारी गलती को तुम छुपा लो और अपनी गलती को किसी और के ऊपर डाल दो। बचपन में हमने सिखाया, बड़े होके वही बच्चा लाइफ टाइम वही करता रहता है। खुद के जो भी गलतियां हैं वो दूसरों के ऊपर डालने के लिए तैयार रहते हैं। ब्लेम गेम, हम बहुत खुश होते हैं दूसरों के ऊपर डाल के। तो बात ये है कि आईना हम सबके पास है, अपने मन में अपना आईना है, लेकिन उस आईने के सामने हम कितने टाइम खड़े होते हैं। जल्दबाजी में हम जैसे घर के आईने में अभी बहुत देर हो गया, बाल भी ठीक तरह से बनाने का टाइम नहीं है, 1 सेकंड में निकल गए। ठीक उसी प्रकार अपने मन में जो हमारा मिरर है, उस मिरर में खुद का सामना कभी नहीं किया, खुद को गलत समझाते आए, उसका दोष है, उसने ये किया, उसने वो किया, इसके लिए ये हुआ। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कहा जाता है नजरिया बदलो तो नजारा बदल जाएगा, नजारा ही बदल जाएगा। तो हम एक प्रयोग करते हैं छोटा सा अभी। मैं एक कमेंट्री आपको दूंगी, आपको उसे फील करना है। तभी आंखें बंद कर लेंगे, अपने राइट हैंड को सामने एक्सटेंड कर देंगे, हथेली ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ, अभी मन में सोचिए कि आपके हाथों के ऊपर एक बड़ा सा किताब रख दिया गया। आप उस किताब का जो वेट है उसको महसूस कर पा रहे हैं, आपके हाथ में है। अभी उसके ऊपर एक और भारी किताब डाल दिया गया, वेट और थोड़ा सा बढ़ गया। आपके हाथों में 2 मोटी सी किताब है, उसको रियलाइज कीजिए, उसको फील कीजिए अंदर से। अब उसके ऊपर एक भारी पानी का ग्लास रखा गया। तो किताब और एक पानी का ग्लास आपके हाथ में है। हाथ में थोड़ा दर्द भी महसूस हो रहा है, इतना भारी किताब और पानी की ग्लास को पकड़े हुए। धीरे धीरे हाथ नीचे कर लीजिए और आंख खोलिए। कितनों को महसूस हुआ हाथ नीचे की तरफ जा रहा था वेट की वजह से? लगा ना थोड़ा सा कि हाथ भारी हो रहा है, लेकिन हाथ में तो कुछ नहीं था। मन से हमने सिर्फ कल्पना की कि हाथ भारी हो रहा है। तो इसीलिए कहा जाता है आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। इसका ये एग्जाम्पल है। मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हम अगर गोलगप्पे के बारे में सोचते हैं, या फिर जिसको जो भी खाने की चीज बहुत पसंद है उसके बारे में अगर हम सोचते हैं तो मुंह में पानी आता है। इसका कारण क्या है? हमारा जो मन है वो कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है वो समझ नहीं पाता है, वो सिर्फ एक्शन करके बताता है।
उसको आपने थॉट दिया मन में कि आपके पास गोलगप्पे है, उसकी आपने कल्पना की, आपके सामने नहीं है, लेकिन उसने रिएक्शन क्या दिया, आपके मुंह में पानी आया। और आपके हाथ में सच में गोलगप्पे हैं तब भी मुंह में पानी आया। इसका मतलब शरीर का जो इफेक्ट है, कल्पना और वास्तविकता दोनों के लिए समान है। तो आप दुखी नहीं हो, लेकिन आप एक दिन सारा दिन जबरदस्ती सोचो मैं बहुत दुखी हूँ, मुझसे ज्यादा दुनिया में दुखी कोई नहीं है। एंड ऑफ द डे आपका मन ग्लूमी हो जाएगा, आप दुखी ना होते हुए भी। तो अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए, आप दुखी हैं, रियल में आपके पास बहुत सारे रीजंस है दुखी होने का, लेकिन आप अगर रोज मन में कहने लगे कि मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, मेरे जैसा अच्छा कोई नहीं है दुनिया में, मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ, सिर्फ तो बोलना ही है। दुखी हूँ सोचने से भी मेरा रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, सुखी हूँ बोलने से डिफरेंस आ रहा है। रिजल्ट में क्या आ रहा है, मेरे शरीर में जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। इसीलिए आज के दिन में कहा जाता है हमारा जो भी डिजीज होता है वो साइकोसोमैटिक डिजीज है। इसका मतलब मन का प्रभाव शरीर पे पड़ रहा है। हम खुद कहते हैं आप ज्यादा हाइपर मत हो जाइए क्योंकि आपका बीपी हाई हो जाएगा, आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए आपका शुगर हाई हो जाएगा। इसका मतलब हमको पता है कि मन के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन डॉक्टर के पास जाता है शरीर की दवा लेने के लिए, मन की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन वो डॉक्टर का काम करता है। मेडिटेशन वो दर्पण है, जिस मिरर के बारे में हम लोग कह रहे थे कि जिस मिरर के सामने बैठ के आप खुद का सामना कर सके कि मैंने क्या किया। आज तक देखिए बच्चों को हम लोग सिखाते आए हैं एक चीज कि बच्चे गोल सेट करो, लाइफ का एम ऑब्जेक्ट सेट करो। तो हमने भी बचपन में किया, गोल सेट किया, पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, ठीक है, और बड़े हो गए, अभी प्रोफेसर बन गए, 2 दिन बाद हम रिटायर कर जाएंगे। जब रिटायर कर जाएंगे उसके बाद डिप्रेशन और बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लाइफ का हमने गोल सेट किया था, लाइफ का पर्पस सेट नहीं किया था। बच्चों को गोल सिखाने के साथ साथ खुद को भी सिखाना चाहिए लाइफ का पर्पस क्या है, क्योंकि गोल अचीव करना कंप्लीट हो सकता है। आपका 5 गोल था लाइफ का, वो 5 गोल अपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपके पास और कोई गोल नहीं है, तभी डिप्रेशन आता है। लेकिन अगर आप जीने का एक पर्पस सेट कर लेते हैं तो वो पर्पस कभी खत्म नहीं होता है। तो वो पर्पस ये हो सकता है कि मुझे जब तक जीना है बहुत खुशी से जीना है, दूसरों को भी खुशी देना है। तो ये तो बहुत इजी काम है, इसके लिए आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आपको फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना पड़ेगा, किसी के साथ राय नहीं करना पड़ेगा, किसी को अपनी मन की बातें बतानी नहीं पड़ेगी, सिर्फ मन में सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम खुद के लिए देना पड़ेगा। तो ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं जिंदगी भर आज तक जो भी कुछ करते आए हैं, किसके लिए किए? दूसरों के लिए किए, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। अब खुद को इम्प्रेस करना है, खुद को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को इम्प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मेडिटेशन के पहले क्या करना पड़ेगा? खुद को जानना पड़ेगा ना। तो हम खुद को जानते हैं, मैं कौन हूँ। देखिए जब हम इंटरव्यू में जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, खुद का नाम बताते हैं,
जेंडर बताते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो बताते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ बताते हैं। उसमें सब जगह पे माई नेम, माई डेजिग्नेशन, माई एजुकेशन, आई कहाँ पे भी नहीं है। मेरा नाम, मेरा काम, मेरा घर, मेरा परिवार, सब कुछ मेरा है। उस मेरे में मैं कहाँ हूँ? तो मैं हूँ कौन? मैं अपने बारे में जो कुछ भी बताती हूँ वो मेरा एक्वायर किया हुआ है, वो लाइफ में कहीं पर मेरा अचीवमेंट है, कहीं पे मैंने उसको पाया है, मेरे साथ नहीं था, वो मेरा अस्तित्व नहीं है। मेरा अस्तित्व क्या है? हम जानते हैं हम कौन हैं, लेकिन हम भूल गए हैं। हम एक शब्द यूज करते हैं, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, महात्मा, हमारे देश के पिता महात्मा गांधी। इसका मतलब क्या है? आत्मा शब्द। जब कोई शरीर छोड़ता है तो हम कहते हैं कि इनकी आत्मा को शांति मिले। जब मुझे कुछ हो जाता है, मान लीजिए मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर कहेंगे पेशेंट को ले आइए। एक सेकंड बाद मेरे साथ अगर कुछ हो गया और मैं चल बसी, तो डॉक्टर फिर मुझे देख के नहीं कहेंगे कि पेशेंट को लेके जाइए, डॉक्टर कहेंगे बॉडी लेके जाइए। तो क्या फर्क रहा? सब तो सेम था। बॉडी तो सेम ही है, देखने में सेम ही लग रहा है, तो किसका एब्सेंस रहा? आत्मा का एब्सेंस रहा। तो इस आत्मा कहाँ पे रहती है? हमारे शरीर के यहाँ पे। यहाँ से और यहाँ से अगर हम 3 रेखाएं खींचे तो पिट्यूटरी ग्लैंड और एपिग्लॉटिस के बीच में एक स्पेस होता है, वो लिक्विड स्पेस, मतलब उसमें लिक्विड जैसा रहता है। तो वो स्पेस में आत्मा का निवास है। इसीलिए हम जब भगवान को प्रेयर करते हैं या फिर कभी बोलते हैं कि मेरा लक बहुत खराब है, प्रणाम करते हैं यहाँ पे, सलाम वालेकुम करते हैं यहाँ पे, कुछ भी करते हैं तो यहाँ पे ही दिखाते हैं ना, तो मेरा भाग्य ही खराब है, उसमें भी हम यहाँ पे ही दिखाते हैं। बच्चे को जब तिलक लगाते हैं ना, काला टीका लगाते हैं, शरीर की कोई और जगह पे तो नहीं लगाते हैं, यहीं पे लगाते हैं। क्यों? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए? पूरे शरीर को नहीं, आत्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए जब हम तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, सब कुछ, और इस जगह का कभी ओपन सर्जरी नहीं होता है। पूरे बॉडी का हर जगह का रिप्लेसमेंट होता है। आंख ट्रांसप्लांट होता है, पेट में लीवर ट्रांसप्लांट होता है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति का इसका ओपन सर्जरी नहीं होता। हाँ, हो सकता है यहाँ पे कट लगा है तो ऊपर से कोई स्टिच लगा दिया, वो अलग बात है, लेकिन इस जगह का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। और कभी कोई बच्चे को बिना हाथ के, बिना पैर के, बिना आंख के जन्म लेते हुए देखा जा सकता है, लेकिन किसी को भी आप नहीं देखेंगे कि जिसका फोरहेड नहीं है, ब्रेन ग्रोथ नहीं हुआ, ये भी दिख सकते हैं, लेकिन ये जगह नहीं है, ऐसा कभी नहीं दिख सकता, क्योंकि आत्मा का स्थान ये है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? मेडिटेशन क्या करता है? देखिए, अभी जो समय है डिप्रेशन का टाइम है। डिप्रेशन में क्या होता है? वेदर क्लाउडी रहता है। जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो उनका मन क्लाउडी हो जाता है। हम कहते हैं कि हमें कोई डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। फिर ज्यादा और डिप्रेशन होता है तो क्या होता है? बरसात होती है। इंसान की डिप्रेशन ज्यादा हो जाती है तो यहाँ से बरसात होती है। बहुत ज्यादा बरसात जब हो जाती है तो क्या होता है? बाढ़ आता है। बाढ़ से क्या होता है? आसपास के जो भी इनहेबिटेंट है उनका लाइफ स्पॉइल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर मैं डिप्रेस्ड होती हूँ तो मेरे आसपास वाले जो भी है उनको इफेक्ट होता है। इससे बचने के लिए क्या किया जाता है? पानी में बांध लगाया जाता है। उससे क्या होता है? पानी का जो फोर्स है उसको कंट्रोल करते हैं हम, और
पानी को एक जगह पे रख के उससे हम इलेक्ट्रिक भी पैदा करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो आसपास के इनहेबिटेंट को लाइट देता है। तो ठीक उसी प्रकार मेडिटेशन बांध है। हमारे मन में चिंताओं का जो बाढ़ हो रहा है ना, फ्लड है, तो उस चिंताओं के फ्लड में एक बैरियर है हमारा मेडिटेशन। मेडिटेशन क्या करता है, वो जो फिल्ट्रेशन का काम होता है कि ये थॉट नेगेटिव है, ये थॉट पॉजिटिव है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये जो जजमेंट है, जो फिल्ट्रेशन है, मेडिटेशन वो फिल्टर का काम करता है। और हमारे मन में जितने भी नेगेटिव चल रहे हैं, जितनी भी चिंताएं चल रही है, उसका एक पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करते हैं। उससे एक स्पिरिट तैयार होती है, एक शक्ति आती है हम में, और उसी को हम कहते हैं स्पार्क। तो कभी कभी कुछ लोगों के साथ हम जब मिलते हैं तो हम कहते हैं ना कि एक व्यक्ति आया था, महफिल को सजा के चला गया, महफिल को जमा के चला गया, उसमें कोई स्पार्क था। तो ये जब वो खुद खुश रहते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी का काम करता है, वो कॉन्टिजियस है, सभी में फैल जाता है। तो इसी प्रकार मेडिटेशन हमें मदद करती है फिल्ट्रेशन करने का। तो अभी हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे और एक प्रयोग, सभी आंख बंद करके बैठेंगे। ओम शांति। किसी को बोलना नहीं है, सभी सिर्फ रियलाइज करेंगे। कुछ देर के लिए अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, एकदम रिलैक्स। स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कर दे। कुछ देर के लिए अपने शरीर के सभी खिड़कियों को बंद कर देंगे। बाहर की सभी चिंताओं से खुद को कुछ देर के लिए मुक्त कर देंगे। एकदम शांति की स्थिति, शांति की गहरी अनुभूति। आज तक मैं सुख शांति के लिए बाहर की तरफ भागी हूँ। आज तक मैं दूसरों से प्यार, सम्मान, इज्जत मांगती आई हूँ। लेकिन खुद के मन में कोसती आई हूँ। आज मैं खुद को जो हूँ, जैसी हूँ, पूरी तरह से उस प्रकार एक्सेप्ट करती हूँ। मैं खुद की भाग्य को एक्सेप्ट करती हूँ। इस धरती पे मैं आत्मा सिर्फ एक किरदार निभाने आई हूँ। इस सृष्टि रंगमंच पर मैं एक एक्टर हूँ, और मैंने अपने रोल को स्वीकार किया। आज तक जितनी भी मेरे संबंध संपर्क वाले थे, जिनको मैं मेरे दुख के कारण मानती आई हूँ, आज मैं दिल से उन सभी आत्माओं को, सभी व्यक्तियों को माफ करती हूँ।
मेरे दुखों के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। मैं खुद भी जिम्मेदार नहीं हूँ। ये मेरे एक्टिंग का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। मैं आत्मा हूँ। मैं इस शरीर का मालिक हूँ। मुझ आत्मा का वास्तविक स्वरूप है शांति। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। इसी तरह से खुद के साथ बात करनी है। खुद में देखना है कि मैं क्या क्या दुख की बातें, क्या क्या अपने मन में पकड़ के बैठी हुई हूँ। कौन से चीजों के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर सकती हूँ। किस किस बातों के लिए मैं दूसरों को नहीं माफ कर सकती हूँ। इन सब को मन में एक बार दोहरा के दिल से खुद को, दिल से उन सब व्यक्तियों को माफ कर देना है। इसका मतलब आपके मन में जो भी आप पकड़ के रखे हैं, धीरे धीरे उसको खोल दिया। तो ब्लॉकेज जिस तरह से खोलता है ना, तो शरीर में अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो शरीर बीमार होने लगता है। तो मन में जो ब्लॉकेज बन बैठा है, उस ब्लॉकेज को हमें इसी तरह से खोलना है। तो ये है मेडिटेशन का एक प्रोसेस। इसको कहा जाता है इनर जर्नी। आप अपने मन के अंदर झांक कर देखें। और इसके बाद होता है मेडिटेशन, है एक्चुअली एक पावर बैंक। यानी पावर बैंक नहीं, मान लीजिए ये एक चार्जर है। मैं हूं मोबाइल, मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, तभी तो मेरे अंदर इतना सारा प्रॉब्लम है। खुद को चार्ज करना है। खुद को कैसे रिचार्ज करेंगे? तो मेडिटेशन के जरिए पावर बैंक के साथ खुद को कनेक्ट करना है। अब ये पावर बैंक कौन है? एक ही सुप्रीम। इस शरीर का जैसे माता पिता शरीर होते हैं ना, आत्मा का पिता परम आत्मा पिता। और परम पिता कोई धर्म के लिए स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, हिंदू शास्त्र में माना जाता है ज्योतिर्लिंगम यानी ज्योति। इस्लाम धर्म में कहा जाता है नूर ए खुदा, नूर यानी लाइट। इस क्रिश्चियनिटी में अगर हम देखा जाए तो वहां पे कहते हैं गॉड इज लाइट। पार्शियन जो है, उनका जो टेम्पल है उसको कहा जाता है फायर टेम्पल। तो अगर देखा जाए तो पूरे विश्व ज्योति बिंदु निराकार को मानते हैं। वो पावर है, उनका स्वरूप है ज्योति स्वरूप, बिंदु, सूक्ष्म बिंदु। जैसे हम भी सूक्ष्म बिंदु है, लाइट है। और देखिए, इतनी छोटी सी है हम कि खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। जैसे एटम, उसको खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी शक्ति कितनी ज्यादा होती है। तो जो जितना सूक्ष्म होता है उसकी पावर उतनी ज्यादा होती है। तो हम में कितना पावर है, तो इसको रियलाइज करना है और भगवान के साथ खुद को कनेक्ट करना है। तो अब भगवान के साथ खुद को कैसे कनेक्ट करेंगे? तो उसके लिए हम फिर से और एक बार मेडिटेशन करेंगे। सीधा उठ के बैठेंगे। ओम शांति। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मेरा पिता है परम पिता परमात्मा, जिसे हम प्यार से कोई भी रूप में याद कर सकते हैं। अपने माँ, अपना बाप,
प्यार से उनको बुलाएंगे अपने पास। मन में सोचेंगे दिव्य ज्योति बिंदु चमकता हुआ बहुत तेजों में अपने किरणों को फैलाते हुए धीरे धीरे मेरे सिर के ऊपर आ गए। मेरा पिता, मेरे प्यारे बाबा मुझे कह रहे हैं दिल से कि आज से तुम्हारी सभी चिंताएं, तुम्हारे सभी दुख दर्द मेरे अपने हैं। तुम अपनी सभी चिंताओं को मुझे अर्पित कर निश्चिंत हो जाओ, सुखी हो जाओ। जीवन के कई समय पर तुमने अपने आप को अकेला महसूस किया है, मन ही मन दुखी हुए हो, लेकिन तुम कभी भी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, साथ हूँ, साथ रहूंगा। मेरे मन के सारे बोझ धीरे धीरे उतर गए। मेरे जो अकेलापन वो समाप्त हो गया। मुझे लगा मेरे लिए भी कोई है, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे सभी दुखों का हल मुझे मुक्ति देने के लिए मेरा पिता मेरे पास है। बहुत सुकून, बहुत चैन की अनुभूति हो रही है। एक गहरी शांति, एक निश्चिंतता, मन का भारीपन एकदम समाप्त हो गया है। मन ही मन में हल्का महसूस कर रही हूँ। खुद को शक्तिशाली भी महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा आज से सभी बोझ से मुक्त। ओम शांति, शांति, शांति। धीरे धीरे आंख खोलेंगे सभी। हाथ को ऐसे करके इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह अगर आप मेडिटेशन करते हैं रात को सोने से पहले, तो मेडिटेशन को कहा जाता है कॉन्शियस स्लीप। देखिएगा ये जो 5 मिनट हमने किया ना, हमें बहुत रिफ्रेश लगेगा, क्योंकि मन की बहुत सारी चिंताओं के कारण हम जब सोते भी है, 8 घंटा सोने के बावजूद हमें लगता है कि और 5 मिनट सो लेते हैं। क्यों? क्योंकि सारा रात मन तो काम में व्यस्त था, मन सोया नहीं, मेरा शरीर सोया था। इसलिए मुझे सोने के बाद भी महसूस नहीं होता है कि मैंने रिलैक्स किया। लेकिन 5 मिनट 10 मिनट का मेडिटेशन भी आपको लगेगा, क्योंकि मन का जो भागा दौड़ी था ना, वो कुछ देर के लिए शांत हुआ। तो धीरे धीरे देखिए, हम लोग शारीरिक मेहनत तो नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम घर जाके कहते हैं हम बहुत एग्जॉस्टेड है आज। और जो लोग बाहर रास्ते में धूप में काम करते हैं ना, वो लोग हमसे ज्यादा आराम में रात को जाके सो जाते हैं। मेहनत तो उन्होंने ज्यादा किया, लेकिन थके हम ज्यादा क्यों? क्योंकि मन हमारा मेहनत किया। तो मन को उस मेहनत से छुड़ाने के लिए ही हम मेडिटेशन करते हैं। जैसे कि सर बता रहे थे कि मेडिटेशन तो एक दिन 10 मिनट 1 घंटे के सेशन में नहीं, हर रोज प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे कि भोजन हम खाते हैं रोज शरीर को ठीक करने के लिए, तो मन का भोजन है हमारा थॉट प्रोसेस।
तो हेल्दी फूड देने के लिए उसको पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट खिलाना पड़ेगा, तभी वो हेल्दी रहेगा। तो इसके लिए हमारे संस्था में 7 डेज का फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिटेशन कराया जाता है। तो हमारा तो बरानगर सेंटर है, आप लोग अगर चाहते हैं तो वहां पे आके 7 डेज का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए ही होता है। उसके बाद रेगुलर अब अपने हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आपको सिखाया जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही सेशन रहेगा। तो आप सबको कैसा लगा अच्छा लगा। बताएंगे। बहुत अच्छा। लेकिन उसके साथ साथ दोष भी हुआ। दोष ये हुआ कि फिर ये 7 दिन मैं रोज आप पर बंधन नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फिर ये फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे हो पाए, शायद उसके बाद हमारे संस्कारों में ये बैठ जाए। ये एक जरूरी चीज है। आपका कुछ सेशंस से मुझे लगता है कि ये रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये हमारे संस्कार में आरोपित हो जाते हैं। एक दिन से हम लोग लाभान्वित तो हुए और कोशिश भी करेंगे जैसा आपने बताया, मगर अ, आपसे झूठ भी नहीं बोलेंगे कि हम लोग परिणाम आपको दिखा पाएंगे या उस परिणाम के साथ आपके सामने उपस्थित हो पाएंगे। लेकिन इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आपके कुछ और सेशंस हम लोगों को मिलेंगे तो इससे ही एक परिवर्तन या क्रांति आएगी। विचारों की क्रांति तो बहुत बड़ी चीज है। बाकी तो बॉल आपके कोर्ट में है और जो निर्णय लेंगी आप ही लेंगी। निर्णय लेने वाले हमारे बड़ी जो दीदियां हैं उनके साथ आपकी बात हुई है, तो वो ही निर्णय लेंगे। आप उनके साथ फिर बात करेंगे तो उस हिसाब से हो जाएगा। आगे वो मार्गदर्शन देंगे आपको। हाँ, तो वो आपको मार्गदर्शन जरूर देंगे। सुबह 7 से 8 बजे और शाम को 6:30 से 7:30 बजे। না না মিশন পেট্রোল পাম্পের অপোজিট ব্রিজিংটা।